All right. All right. Good evening, everyone. सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट आप लोगों के एफर्ट्स एंड आप लोगों की मेहनत से वी हैव दीज जोन्स एस्टैब्लिश्ड एंड टुडे वी आर टुगेदर सेलिब्रेटिंग 15 ईयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज हमें 15 ईयर्स एक्चुअली कल 15 ईयर्स पूरे हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। एंड इस पूरे इवेंट का जो पर्पस है वो यही है कि हम आप लोगों से आपके एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट हैज बीन द जर्नी सो फार जानना चाहते हैं। सो विदाउट much ado, I would like to start with Raju. Hi, Raju. Good evening. Hey, So, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप यू वर इन्वॉल्व इन द स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द बैंगलोर चैप्टर ऑफ उपाय। तो क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर ऐसी कोई इंसिडेंट और हाउ हैज बीन द जर्नी सो फार कि आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? first of all, congratulations moment. I think this is a very proud moment, and I would like to congratulate each and every person who has been part of this journey, directly, indirectly, in so many different ways, including the people who have supported us in different forms, and of course the volunteers, and of course the leadership team as such. So that's, yeah, let's take a moment to pat ourselves on our back. Uh, and then regarding the journey, it has been a fascinating journey personally and as an experience. I mean, this was the first time I was getting involved into getting involved with the NGO. So that was a tremendous learning for me personally. And in terms of journey of Upai itself, Upai, the way I felt it, I was looking at different NGOs, whom should I associate myself with, and etc. So it so happened that everything came together, and I met Varun and Harsha, and then it started. And the best part about this whole process with Upai was that it gave a lot of freedom in terms of how you want to do things, how you want to contribute, etc. And it has been, in the last, I think it was somewhere around 2019, 2018 timeframe. So from then to what the difference that Upaya has made in the lives of communities that we have worked together, it's really amazing to see the results. So that's the primary outcome is what I would really want to really highlight, and probably that's the thing which gives you pleasure, as to see the lives and means and lives of the people whom you are working with. You see that changing, right? That gives you pleasure. ओके। सो जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, आई थिंक वे बैक इन 2018, आई बिलीव Right, right, बैंगलोर, right. and today we are sitting in 2025. So there would have been, I'm sure, lot of incidents, lot of memories which you would have created in this duration. Any such incident or memory which you would like to share with us as a memento, I can say, which you have taken with you from Upai, celebrating these 15 years? Um, there are so many moments. I'm not getting I'm not getting to pick a moment, but many moments where you feel that whenever the moments are little. There were many moments which seemed to be big, but for me personally, what moments stood out were the sheer joy of children, right? Uh, Coming in with a lot of hope and with a lot of positive energy, and then we are able to bring in some real positive energy into those kids and hope into those kids. That's the, when you see them, coming in and enjoying themselves, that's the thing which stays with me, whenever I interact with the kids. आई एब्सोल्युटली एको विद व्हाट यू से राजू, बिकॉज वो बच्चों की जो उम्मीद और जो खुशी होती है उसी को देख के आई हाँ, थिंक हम लोग सब इतना सेटिस्फाइड फील करते हैं। एंड दैट इज हाँ, द रियल इंस्पिरेशन। एंड लाइक यू राइट, सेड, वो होप जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता है, एंड उनसे करेक्ट,
बात करके उनसे मिलके वो होप हमेशा बढ़ता है दैट वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम। Exactly, and every time you feel down when you when you interact with the kids, it reflects back the energy and it gives you more hope. And then, हाँ, हम हमें करना चाहिए, and then there is a difference that you are making. That's something which stays with me. Absolutely. Thank you so much, Raju, for sharing your experience with us. And when you talk about hope, I think one of the biggest challenges in the organization was the time when we were all struggling with COVID times. And COVID Right. time was like, I think everywhere we have done something or the other. And but one remarkable thing which happened during that time was the opening of our Gadarwara Center in Madhya Hmm. Pradesh. So, Tarun, I would like to ask you my next question कि आपकी जर्नी कैसी रही जब आपने स्टार्ट किया था। गदरवारा का जो जर्नी रहा है वो बहुत डिफरेंट रहा है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस एंड आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें आज। डेफिनेटली मैम, दैट वाज रियली काफी मुश्किल मोमेंट था उस समय, क्योंकि बच्चों से हम लोग कनेक्टेड तो थे, लेकिन कोविड में सब कुछ ही बंद हो गया था और बच्चों का एजुकेशन भी बंद हो गया था। तो एट द सेम टाइम हम लोगों ने उपाय शुरू किया और मतलब वरुण सर और विनय सर से हमारी बात हुई कि सर कैसे कर सकते हैं इसको, तो आप लोग कैसे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक यादव सर थे, तो उनसे जस्ट कि देखो तुम बात करके देखो कि कैसे अपन कर सकते हैं इस चीज को। तो बस वहीं से फिर ये जर्नी शुरू हुई और सर के गाइडेंस में कि किस तरह से बुकलेट बांटना है और किस तरह से ऑनलाइन करना है। जब पूरा एजुकेशन सिस्टम बंद था तब हम लोगों ने शुरू किया, एंड दैट वाज रियली ग्रेट। मतलब जब चीजें बंद हो रही थी तब हम शुरू हो रहे थे, तो इट जस्ट अपोजिट टू द वर्ड। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग का रहा। और उस समय जो शुरू शुरू में हमारे साथ वॉलंटियर जुड़े थे, वो इतने एंथुस्टिक थे, और शायद कोविड का ये एक पॉजिटिव था कि हम लोग के पास टाइम भी था, हम लोग इतना समय दे पा रहे थे। तो दैट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी। और उस समय जो बच्चे थे आज वॉलंटियर हो गए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको देख करके बहुत खुशी होती है। और जैसा कि सर ने बोला कि रिवॉर्ड इज दैट, कि जो बच्चों के चेहरे पे जो वो खुशी है, जो एक हैप्पीनेस दिखता है, और सबके अंदर एक अपने विलेज के लिए कुछ कर गुजरने की बात जो एक जो दिखती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक एग्जाम्पल ही है कि जो हमारे शुरू शुरू के बच्चे थे, वो मतलब उस पूरे गांव से पहला इंजीनियर बना जो था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, दैट वाज हमारे यहाँ का बच्चा था। सेम ही स्टोरी दूसरे विलेज की भी थी कि मतलब पूरे विलेज से पहली लड़की जो कोचिंग करने बाहर गई थी, दैट वाज फ्रॉम द उपाय। तो डेफिनेटली एक बड़े प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए आज। अभी तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उपाय के साथ भी, और अपने कॉलेजेस में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट भी रहता है। सो दैट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी। अमेजिंग। आई मीन इतना डिफिकल्ट टाइम था वो। आई स्टिल रिमेम्बर कैसे स्ट्रगल कर रहे थे एंड उसमें एक एजुकेशन को कंटिन्यू करके रखना और उस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके हर जगह पहुंचाना, इट इटसेल्फ स्पीक्स कि कितनी ब्यूटीफुल जर्नी रही होगी वो। एंड आई थिंक इट वाज इन 2019-20 अराउंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। एंड 5 साल हो गए हैं गाडरवारा जोन को भी, 5 to 6 years ऑलमोस्ट। and overall organization is here together celebrating the journey of 15 years. So Tarun, I would like to know from you कि आपका कोई एक ऐसा बेस्ट मोमेंट और आपका कोई एक ऐसा बेस्ट मेमोरी विद द ऑर्गेनाइजेशन जो आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं उपाय से, पर जो सबसे मेमोरेबल जो मेरा मोमेंट है वो ये है कि जब गढ़वारा से मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो उस समय बच्चे लोग बोल रहे थे सर आप आइए आइए। और क्योंकि अभी तक ये था ना कि हम ही बच्चों को कुछ दे रहे थे, तो बच्चे लोग ना एक बहुत प्यारा सा ना एक घड़ी लेकर के आए थे हमारे लिए, हमें गिफ्ट देने के लिए कि सर आप जा रहे हैं तो ये गिफ्ट आपके लिए। एंड दैट वाज, मुझे याद है एक ऐसा घर जैसा बना हुआ था उसमें, और एक घड़ी छोटा सा उसमें लगा हुआ था। एंड बोलिए सर ये आप हमारे लिए आप लेके जाइए, ये आपको हमारे लिए है। एंड ये थोड़ा सा रहता है, मेरा पर्सनली रहता है कि हम कुछ लेने में विश्वास नहीं करते कि आप दे सके। तो हमने कहा इनके
इनकी फीलिंग को भी कैसे रखना है और इसको भी कैसे करना है। तो थैंक गॉड कि एक सजेशन आया कि अच्छा देखो, ये बुक आपने हमको दिया एंड दिस इज फ्रॉम द उपाय ओनली ना, तो ऐसा करते हैं, इसको अपन अपने क्लासरूम में ही लगा लेते हैं, तुम्हें भी हमेशा याद रहेगा, हमें भी हमेशा याद रहेगा। तो वो जो बच्चों की खुशी थी कि हाँ सर ये अच्छा है, सजेशन है, हम लोग यहीं पे इसको लगाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। प्लस जो आज तक बच्चों का वो जो प्यार हमें मिलता है, बच्चे जो रेस्पेक्ट देते हैं, इट वॉज रियली मोमेंट। तो उस समय काफी हमें भी लगा था कि मतलब इतना सब शायद हमने बच्चों के लिए किया नहीं है, पर जितना हमें रिटर्न मिल रहा है। तो कई बार लगता है, लोग सोचते हैं एनजीओ में काम करते हैं क्या मिलता है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि क्या नहीं मिलता है। वो जो चीज मिलती है जो आपको करोड़ों पैसे कमाने से, बहुत सारा काम करने से भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी, जो वो थोड़ा सा एक निस्वार्थ, जो हम बोलते हैं ना, निस्वार्थ भाव से जो काम करने पे मिलता है, वो मिलता है और लाइफ टाइम ये आपके साथ चलता है। तो दैट वाज रियली गोल्डन मोमेंट फॉर मी। डेफिनेटली, कंप्लीटली अग्री विद यू तरुण। एंड यही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, इसी को हम आई थिंक याद करते हैं और ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे भी इसको करें और बच्चों से कनेक्ट बना के रखें, उनके लिए काम करें एंड उनकी लाइफ में एक छोटा सा चेंज लाने की ट्राई करें। एंड आई थिंक दिस इज नॉट this is just actually a beginning and this is not a journey which is going to stop anytime soon, and ये एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी जर्नी है जो हम सबको आई थिंक साथ चलना है एंड इसको आगे बढ़ाते जाना है। एंड इसको आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू गो टू आवर नेक्स्ट जोन विच इज कोलकाता। हाय सिद्दिक, हेलो मैम। हाउ आर यू? अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया। सो सिद्दीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोलकाता जोन जब स्टार्ट हुआ था, आप भी उस टाइम पे जुड़े थे, ड्यूरिंग द इंसेप्शन, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द जोन। सो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था वो और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए ड्यूरिंग दैट टाइम? सो पहले मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जैसे जुड़ा हूँ ये अचानक एक दिन वरुण सर मेरे को रोड पे मिले थे, वो साइड विजिट पे थे। एंड मैंने जस्ट सर को जाके बोला था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है बच्चों के लिए जहाँ मैं उनको हेल्प कर पाऊँ और पढ़ा पाऊँ। तो सर ने फिर मेरे को बोला कि ये मेरा कार्ड है और मैं ये शुरू कर रहा हूँ यहाँ, तो आप अगर हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहां से जो मैंने जर्नी शुरू की है, मैं आज तक उसका पार्ट हूँ। और ये जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वहां पे, सबसे बड़ी चैलेंजेस है जगह की। क्योंकि जो फुटपाथशाला थी हम लोग की ना, वो रोड के ऊपर थी एंड लाइक दोनों तरफ से गाड़ियां जाती थी, तो लोग ऐसे बोला बोला करते थे क्या होगा इनको पढ़ा के, ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये वैसे ही है, ये होंगे। पर वो चैलेंजेस को पार करके जब हम लोग ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बच्चे खुद आने लगे एंड कंटिन्यू रोज आते थे, रोज पढ़ते थे हम लोग के साथ, वो बहुत मतलब मोटिवेटिंग था हम लोग के लिए। रोज जाके उनको पढ़ाना, रोज वो उनके उनसे भी वो एफर्ट मिलना कि हाँ हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं, हम लोग हम लोग को भी आगे बढ़ना है, ये मोटिवेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी थी हम लोग के लिए स्टार्टिंग से। ओके। सो ये जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जगह का हमेशा एक चैलेंज हम्म। रहा या जो भी रहा, तो आज आई थिंक आज कोलकाता में हमारे 2-3 सेंटर्स रन हो रहे हैं। 2 सेंटर्स है मैम। 2 सेंटर्स रन हो रहे हैं। तो आज वो चैलेंजेस को हम कैसे कोप अप कर रहे हैं और क्या उस चैलेंजेस को ओवरकम करके हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं अभी? तो अभी 2 सेंटर्स है, एक एसडीसी सेंटर है हम लोग का जो कंप्यूटर क्लासेस हम लोग सिखाते हैं, और एक हम लोग का नॉर्मल सेंटर है जो हम लोग का रीच एंड टीच सेंटर है। तो अभी हम लोग ने ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वी हैव स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद क्लब्स। हम लोग के यहाँ छोटे छोटे क्लब्स होते हैं जहाँ दुर्गा पूजा होता है, या कोई लाइक क्रिकेट फुटबॉल का क्लब होता है जिनका क्लब रूम्स रहता है। तो वो क्लब रूम्स वो लोग रेंट पे देते हैं, या वो क्लब रूम्स नॉर्मली पढ़ाने के लिए देते हैं। तो वी हैव टेकन दोज क्लब रूम्स जो एटलीस्ट एक सिक्योर्ड प्लेस पे है, जहाँ एक अच्छा शेल्टर है, फैन है, बच्चे लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। सो वी हैव टेकन दोज टाइप ऑफ प्लेसेस वेयर वी मतलब पढ़ाते हैं हम लोग उन लोग को। ओके। ओके। सो सिद्दीक, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, लाइक आज हम 15 years ऑफ सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे सब गैदर हुए हैं। What message would you like to give to all the volunteers, all the people who are associated with Dubai? डोंट गिव अप ऑन दोस किड्स, उनको भी टाइम लगता है समझने में, उनको भी टाइम लगता है सीखने में। अगर हम लोग गिव अप कर गए तो उन लोग के पास कोई नहीं रहेगा जिनके पास वो जाके बात कर। सो वी नीड टू बी मोटिवेटेड टू कीप देम मोटिवेटेड। That's actually a beautiful thing to say, Siddiq.
हमें भी खुद को मोटिवेटेड रखना है ताकि हम उनको मोटिवेटेड रख पाए, एंड इस मिशन एंड विजन के साथ जो हम सबने शुरू किया है इसको आगे प्रोपोगेट कर सके। एंड आई थिंक टुडे वी आर ऑलरेडी spread across 44 centers all over India, जो in itself is such a big accomplishment, क्योंकि 15 years में 44 centers को चलाना, मैनेज करना, एंड देन एजुकेशन को स्प्रेड करना, bringing education to a level जहाँ पे where we actually live the vision which we work for, that replace the begging bowls with books, उस चीज को हम अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं collectively। एंड दिस सिमिलर मिशन एंड विजन ऑफ उपाय हैज ऑल्सो रीच टू पुणे, जहां से मयूरेश्वरी आज हमारे साथ हैं। हाय मयूरेश्वरी। हेलो। हाय। हाय। सो मयूरेश्वरी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आज हमारे साथ यहाँ जुड़े। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट पुणे जोन, हाउ डज इट फील टू बी द फर्स्ट वॉलंटियर, वन ऑफ द फर्स्ट वॉलंटियर्स ऑफ द जोन? आई मीन इट फील्स ग्रेट बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी की वजह से ही यू नो मुझे ऐसे खुद में वो कॉन्फिडेंस आया है टू टेक इन चार्ज ऑफ सिचुएशंस, टू बी सेल्फ ड्रिवन। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं पुश करेंगे आगे तो हम बाकी लोगों को कैसे निकाल पाए कुछ चीजों से जहाँ पे उनको रह के ओवर टाइम उनका कंफर्ट जोन क्रिएट हुआ है। तो ये लाइक विटनेसिंग दिस एट अ यंग एज sort of shaped me as a person, and as a woman being an artist here in the same city, you know sort of उसके challenges मुझे overcome करने में ये early stage में जो मुझे opportunities मिले उससे मुझे बहुत हेल्प किया। और उससे एक इम्पोर्टेंट लेसन है जो मुझे सीखने मिला, जो मैं आफ्टर नाउ लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years, यू नो जो मैं अभी भी ऐसे लोगों को कभी आई एम ऑन प्रीचिंग मोड एंड आई हैव टू शेयर विजडम, आई शेयर दिस, और मैं उपाय का ही नाम लेती हूँ हमेशा। और मैं बोलती हूँ कि इट हैज taught me that how a little bit of pessimism, or that negativity, is important in life for us to really grow out of the comfort zone, you know, because like as we were conducting all these surveys and discovering different parts of the city जिसमें हमको ढूंढना था, हम लोग जा रहे थे वो पर्सपेक्टिव से कि हमको ढूंढना है वो अंडर प्रिविलेज्ड कौन है, यू नो तो टू वॉक इन दैट माइंडसेट कि हमको ढूंढना है जिनको जरूरत है हमारी, या जिनको जरूरत है हमारे बेटर सेल्फ की, हमको वो जाके ढूंढना है। तो आई वॉज वंडरिंग, isn't that attitude only a little bit negative, you know और वो जो नेगेटिव है कि हमको हमारे से कम प्रिविलेज लोगों को ढूंढना है, वही हमको पुश करता है उनकी ओर पहुंचने के लिए, you know so that that is not negativity then, it is just fuel for ourselves, because कुछ कुछ हमको फिर वो सर्वे के दौरान हमको कुछ बच्चे मिले जो like everybody has that spark, every kid has that spark, that was basic. So now it's like what differentiates a person who ends up being in the history books versus what differentiates a person who comes from privilege but ends up dying in the same house, not growing at all. What differentiates that? That differentiation happens when you are, I think, sort of uh, not stuck, but way too comfortable with the resources you have access to, you know, because there were days like in the first few weeks, like when the shala finally opened, we are like अभी मैक्स बिचे हैं, हम ये सब उठा के लाए हैं चीजें सोर्स करके कि हम और ज्यादा लोगों को एक्सपेक्ट कर सके और हमारे में वो अबंडेंस हो, और वो टाइम का भी अबंडेंस हो, रिसोर्सेज का भी अबंडेंस हो, कि हम इनको प्रोवाइड ही ना कर सके, बट वो एनर्जी जो उनको वो सब रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में जाते हैं, वो एनर्जी उनको वहां से खींच के लेने में जाए और वो पेशेंस हमारे में रखने में जाए जिनसे हमको उनको बेसिक चीजें सिखानी है। इट डजंट स्टार्ट विथ एबीसीडी, यू नो इट स्टार्ट्स विथ फोल्डिंग द मैट, it starts with knowing you need a pencil or you need a pen to write what, you know.
It starts with waiting for other people to come before you start. It starts about, thinking about washing your hands. So all these basic things that we don't even need to be taught because we come from privilege. We have seen our parents have, all of this in abundance, time in abundance, to think about hobbies, like what to pursue. Like, do you want to pursue music? Do you just want to pursue academics? That also comes from प्रिविलेज और फिर एक पॉइंट के बाद 2-3 हफ्तों के बाद हमको दिखने लगा कि वो आ तो रहे हैं, बट फिर वो नहीं आएंगे, वो जाएंगे खेलने के लिए बिकॉज दे आर लूजिंग दैट होप कि वो कंसिस्टेंसी रख के उनको रिजल्ट कितने सून मिलेंगे. The kids don't know. They're used to fast life because they're on survival mode. They're seeing their parents make money on a daily basis to provide for them on a daily basis. So how can they look at their own future like 10 years down the line if that also comes from privilege? That imagination and dream also comes from a privilege, is what I realized. And if you have the privilege to dream and dream big, then there is no need to doubt yourself, because there are more people in the world that you need to, you know, lend your hand to, or your shoulder to, or your patience or your anger to, because it also taught us that just being kind and being all playful, calling these kids to come learn, play with us would not work after some point. You have to take on that role of being the elder one, even though you are also a kid, a volunteer. But that privilege and that wisdom that comes from privilege makes you an older person despite of your age. And that comes with responsibility, is what Upai taught me. You know. Then what else? Then I've noted down like a few things that Upai has given me, you know. First was leadership opportunities at a young age, by allowing us to like just conduct surveys. Like अगर सर आए पुणे में, तो सर हम हमारे साथ ही बार बार नहीं घूमेंगे. सर हमको वो खुला स्पेस देंगे कि हाँ तुम जाके कर लो उनसे बात. So that sort of that belief and faith, yeah, you are a kid, but you are not a kid. You have responsibilities, you know. So that was very beautiful because now also, like just thinking of something and gathering knowledge about whatever I'm thinking about has become so easy for me because हम लोग ऑन फील्ड जाने के और बातचीत करने के लोगों के साथ, तो वो अभी मुझे बहुत हेल्प करता है ऑन अ डेली बेसिस. फिर और है कि to not be satisfied, you know, with the privilege, always like thrive and be hungry for more because there are hungrier people in the world, you know. फिर patience का strength, जैसे I mentioned earlier, to be patient with the kids because they're so lovely. They're so lovely, You want them to be better, but it's not enough. Then to be the fuel, and importance of being self-driven. वो ही है, यही है इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उपाय के साथ और जो जो एक्सपीरियंसेस ने मुझे शेप किया है आज तक. थैंक यू सो मच मयूरेश्वरी फॉर शेयरिंग इट. आई थिंक बहुत सारी बातें आपने शेयर की एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम बात करते हैं एकेडमिक्स एंड ऑल दैट, यस वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैल्यूज इक्वली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर लाइफ्स. एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल. लेकिन आई थिंक उपाय के मीडियम से एटलीस्ट हम लोगों ने वो वैल्यूज उनको इम्पार्ट किए हैं, उनको उस चीज की इम्पोर्टेंस समझाई है, दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी पेशेंट, टू वेट फॉर अदर्स, और टू वैल्यू ईच अदर्स ओपिनियन, शेयरिंग, केयरिंग, ऑल दीज थिंग्स. सो ये जो वैल्यू सिस्टम उपाय ने इनकलकेट किया है हमारे बच्चों में ऑल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई थिंक, एंड वी शुड ऑल अपलॉड आवरसेल्व्स फॉर दैट. क्योंकि यस, स्टडीज आर इम्पोर्टेंट बट नथिंग गोज बियॉन्ड without the values that really makes a difference. So I mean, thank you so much. कितनी अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है बिकॉज आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल वे टू पुट इट वुड बी लाइक हम लोग उनको नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम उनको we're teaching them how to learn things. You know what I mean? Like we're not teaching them anything, we're just teaching them how to learn.
in whatever they do. Absolutely, absolutely, Mayureshwari. Thank you so much for sharing that beautiful experience. And with this, I would like to move ahead in this journey and talk about the inception of Delhi Zone. We have Ish with us. Hi, Ish. हाय मिथिला. Ish, is it possible for you to put on your camera? ओके रुको एक मिनट. हाय मिथिला. Hi, how are you? गुड यार, गुड, वेरी गुड. So, Ish, before we begin, I just wanted to give you a background that today we are all gathered here to talk about the 15 years celebration of the organization. So, उपाय ने successfully 15 years complete किए हैं and आज हमारे जितने भी first volunteers हैं different zone के, they have gathered here and we are talking about their experiences and their memories. And when I talk about Delhi zone, I think हम लोग साथ में ही थे जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था. सो ईश वॉज विद मी जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था एंड द फर्स्ट डे हम लोग सर्वे के लिए गए थे. सो बिफोर आई टॉक अबाउट इट आई वुड आस्क ईश टू टेल अबाउट इट कि जो हमने स्टार्ट किया था सर्वे किया था आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसी कोई मेमोरी याद हो उस टाइम की या फिर आपकी ऑल अक्रॉस जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ. हाँ मिथिला, वैसे यार उम्र हो गई है तो पुराना भूलते जा रहे हैं. लेकिन ये है कि दिल्ली में हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी तो उस टाइम काफी जोश था, और उपाय के साथ नागपुर से जुड़े हुए थे. और उसका काम को देखा था वहाँ पे, जो भी एक संतरा मार्केट है वहाँ पे, तो बिल्कुल काइंड ऑफ कंडीशंस जो बच्चों की थी वहाँ पे जो रहते थे, और वहाँ पे हमारा सेंटर चल रहा था और बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रीजन था उपाय से जुड़ने के लिए. और तो नागपुर छोड़ने का जब दिल्ली आए तो, और वरुण जी ने बताया कि वी आर थिंकिंग कि एक सेंटर खोला जाए, तो बिल्कुल मुझे लगा कि हम भी कुछ इसमें रोल प्ले कर सकते हैं. एंड तुम मिले ही वहां पे फिर, तो करोल बाग की गलियों में घूमे और वहां गए थे उस पार्क में एक सेंटर जब स्टार्ट किया. और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, साफ सफाई की थी, दारू पीने वाले लोग भी थे वहां पे, नहीं जो तंग कर रहे थे, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे. तो स्लोली स्लोली, बट इट्स वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. मतलब दिस नीड्स टू बी लर्न कि कोई चीजें परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन है, आपको कुछ करना है, तो धीरे धीरे आप देखो, दिल्ली सेंटर भी हो गया, गुड़गांव सेंटर भी हो गया. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कम अक्रॉस. और कितना फ्रॉम 8 इयर्स 9 इयर्स की जर्नी रही है उपाय की दिल्ली जोन में. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द करोल बाग सेंटर है ना, वहाँ एक दैट वाज द फर्स्ट सेंटर इन द नॉर्थ. तो यही है कि अगर कहीं मन है और सही अगर आपका करना कुछ चाहते हो, तो कहीं ना कहीं लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा चलता रहता है और बढ़ता रहता है. तो उपाय अभी भी अच्छा काम कर रहा है. अभी भी मुझे जब भी मैं बात करता हूँ तुमसे, वरुण जी से, तो बहुत ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग होती है कि हम भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं. और कभी भी मौका मिलता है तो हाँ, कुछ भी हमारी तरफ से कर पाते हैं तो अच्छा ही लगता है. मतलब फॉर फॉर आवर सेल्फ ओनली वी फील कि वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. तो ऐसे ही और सेंटर खुलते रहे, नहीं, और भी एक्सपेंड होता रहे. एंड और बच्चों को रीच कर पाएं, और बच्चे एजुकेशन के नेट में आ पाएं, कुछ कर पाएं अपनी लाइफ में अच्छा, और ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकल पाएं. तो मुझे लगता है यही विजन है. और वैल्यूज तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है. अगर वैल्यूज दे देंगे तो एटलीस्ट दे विल बिकम अ गुड ह्यूमन, एंड दे विल बी अ गुड सिटीजन. एंड कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे अगर इफ दे हैव वैल्यूज. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ऐसा नहीं है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अपाए उस चीज़ में भी अच्छा करती है, अपने सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देती है, जब मॉरल एजुकेशन पे ध्यान देती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई होप ये चलता रहे आगे. और एज अ ऑर्गेनाइजेशन 15 साल हुए हैं, और हम आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को 20 इयर्स पे कहाँ देखते हैं, और क्वालिटी कैसे हम सस्टेन कर पाएं अपनी, विद द एक्सपेंशन ऑल्सो. दैट इज
बिट चैलेंजिंग थिंग, बट लेकिन अगर हमारे पास अच्छी विल पावर है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे वॉलंटियर्स हैं, तो डेफिनेटली वी कैन बिकम अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन इन अ फ्यूचर, बेटर देन टुडे। तो आई सीरियसली एंड सिंसियरली होप कि उपाय बहुत कुछ कर पाए लाइफ में आगे भी, और हम भी उसके साथ कुछ कुछ कर पाए जितना हमारे में क्षमता है। All ठीक है। right. Thank you so much, Ish, for हम्म। sharing your experience. And I would just like to add कि yes, दिल्ली जोन की बात करूँ तो आज 8 साल पूरे हो गए हैं जोन को स्टार्ट हुए, एंड इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। हम लोग 3 सेंटर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड ईश हैज़ बीन वन ऑफ द कंसिस्टेंट सपोर्टर्स ऑल थ्रू। काफ़ी इश्यूज आए, अप्स एंड डाउन्स रहे, बट ही हैज़ बीन विद अस इन दिस जर्नी वेरी सपोर्टिवली, ब्यूटिफुली, एंड we still look forward to have you with us, हम्म। continuing this support. And yes, expansion definitely all across the zones and और भी cities में होगा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग और बच्चों को रीच आउट करें एंड और बच्चों तक एजुकेशन को प्रोवाइड करें, एंड वी स्टिक टू आवर मिशन कि वी आर एबल टू रिप्लेस दोज बेगिंग बोल्स विद बुक्स। सो यस, विद दिस मिशन आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ईश कि अगर आज आपको एक मैसेज देना हो सभी वॉलंटियर्स को, सभी लोग जो उपाय से जुड़े हैं उनको, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरी तरफ से यही है कि स्मॉल एफर्ट, अगर एज अ वॉलेंटियर हम सोचते हैं कि मेरा क्या स्मॉल एफर्ट कुछ क्या ही कर लेगा, तो समबडी स्मॉल एफर्ट कैन मेक अ बिग चेंज इन समबडीज लाइफ। सो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि स्मॉल एफर्ट जस्ट स्मॉल, कोई एनीथिंग इज नॉट स्मॉल, मतलब एवरीथिंग इज अ बिग थिंग। तो तुम्हारे स्मॉल 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 एफर्ट से ही हम मिलके बहुत बड़ा उपाय बन चुका है। तो दैट इज माय मैसेज, दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग चेंज। सो जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट एंड विद योर हार्ट। और बिल्कुल बिल्कुल आप that is my thing, that nothing is small, and with the small things only the high, like the you can achieve anything. ठीक है। तो that is my message to the all the volunteers कि जितना हम काम कर पाए, जितना जितना हमारी में क्षमता है, तो बिल्कुल अपने दिल से करें, और उपाय के साथ करें, उपाय के बाहर करें, लेकिन यही इसी विजन से करें कि इस देश के बच्चों को एजुकेशन मिले, जैस यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिले। डेफिनेटली समडे कुछ कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी, और हमें एज अ सोसाइटी और एज अ सिटीजन माइट बी गर्व होगा हमारे देश पे भी, और हमारे एज अ ह्यूमन होने पे भी, कि हम कुछ कर पा रहे हैं दूसरे के लिए। तो यही मेरा एक तरह का अ, संदेश लगाओ कि यही है कि यही करना चाहिए हमें एज ए ह्यूमन, है ना, सर्विस टू अदर्स। इफ इफ वी आर हैप्पी फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स, देन इट मेक्स अस ह्यूमन, आई थिंक, है ना। Absolutely, I completely agree with you. So service for the others defines us as humans, and I think all of us should do. हम्म। So thank you so much for that beautiful message, Ish. And with this, I would like to come to Siddiq. And Siddiq, I would like to know from you that हम 15 years आज completion पे खड़े हैं. If I ask you, आप उपाय को कहाँ देखना चाहते हैं? टू बी द बेस्ट, नॉट द बेस्ट एनजीओ, तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग एनजीओ जो बच्चों के पढ़ाई को लेके आगे बढ़ पाए। और नॉट ओनली ये, इतने हम लोग जितने सिटीज में हैं और जितने सिटीज है, वी शुड ओपन अ सेंटर इन एवरी सिटी जहां हम लोग हर एक बच्चे को रीच आउट कर पाए। और नॉट ओनली किड्स, हम लोग जो थोड़े ओल्ड एज वुमेन्स है जो हम लोग की हेल्प चाहते हैं, उनको भी हम लोग रीच आउट कर पाए। Thank you so much, Siddiq. तरुण, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, अगर आपको एक मैसेज देना हो सभी वॉलंटियर्स एंड सभी लोग जो उपाय से जुड़े हैं उनके लिए आज इस मौके पर, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको?
मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक सेल्फलेस जो वर्क है वो सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं, पूरे यूनिवर्स को एक वो पॉजिटिव एनर्जी देता है जिससे पूरा यूनिवर्स ड्रिवन कर होता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो धरती थमी हुई है उन चंद अच्छे लोगों के बल पे थमी हुई है। तो जस्ट डू दैट वर्क वेयर एवर वी आर, हम चाहे कहीं पर भी हैं, जितना भी, जैसे अभी सर ने भी बोला कि जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक छोटा सा भी इनफ है। एक वो छोटी सी कहानी आती है कि एक बार बहुत समुद्र में पूरा ज्वार भाटा आ गया था, एंड बहुत सारी मछलियां बाहर आ गई थी। तो एक छोटा सा बच्चा एक एक मछली को ऐसे हाथ में उठा के और वापस समुद्र में डाल रहा था। तो वहां से एक समझदार व्यक्ति निकला, उसने बोला, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर पाओगे, इतनी सारी मछलियां हैं, कितनों को बचा पाओगे? तो उसके हाथ में एक मछली थी और उसने उठा के पानी में डाल दी, बोला ये तो बच गई। तो बस यही बात है कि निस्वार्थ भाव से छोटा सा भी जो हमारा काम हो सके वो भी बहुत को जीवन दे सकता है, बहुतों के लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। सो जस्ट डू दैट। वो बोलते ना कि बस प्रेम के मोती बिखराते चल, बस दैट्स इट। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया आपने कि एक छोटी सी कोशिश भी शायद बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। जैसे उस बच्चे ने एक मछली को बचाने के लिए छोटी सी कोशिश करी, एंड आई थिंक उसी तरीके से हम सब भी छोटे छोटे अपने प्रयास और अपनी कोशिशों से वहां पहुंच पहुंच जाएंगे एक दिन। ये एक प्रोसेस है, ये एक लंबी जर्नी है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं एक साथ। एंड आई थिंक बहुत सारे माइलस्टोन्स, बहुत सारे चैलेंजेस को कवर करके आज हम यहाँ पहुंचे हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी की एक क्रिएशन है। जो हम बोलते हैं ना, कोशिश एक बेहतर कल की, वो यही है। क्योंकि हम सब इसमें जुड़कर ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके लिए ही एम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच तरुण फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड विद दिस आई वुड like to ask Raju. Raju, what is your message to all the volunteers at Upai, since we are here together today? Okay, my message would be simple. Just keep going. You know, जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, सब लोग ने बोल दिया है ऑलरेडी कि इट डजंट रियली मैटर एज टू हाउ मच, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बिग और स्मॉल और whatever capacity you're doing, please keep going, continue your work, and yeah, ultimately outcomes will come out. As long as our efforts are on, outcomes will. It's only a matter of time before the outcomes appear, and there will be. I would like to see a stage where we reach as an organization every nook and corner of India, where wherever there is a need, we have a presence and we are able to make a difference to many lives, and lives of small children who for whom we can give their dreams a wing, and provide a window of opportunity, equal opportunity. Absolutely. Absolutely, Raju. I completely understand and I completely agree with what you say, that equal opportunity should be given to everyone so that they have the access to the basic childhood, the basic education, which is their right. So thank you so much for that beautiful message. Um, बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे, मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 अक्टूबर को हम लोग नागपुर में सब इकट्ठा हो रहे हैं फॉर द 15 ईयर सेलिब्रेशन। सो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी दैट यू ऑल कम एंड जॉइन अस फॉर दैट सेलिब्रेशन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ एन इवेंट। क्योंकि 15 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये जर्नी एक बहुत ही मिक्स्ड जर्नी रही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव। वी हैव बीन थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट येस, टुगेदर वी आर स्टैंडिंग हियर सेलिब्रेटिंग दीज 15 ईयर्स। सो अगर आप लोग आएंगे, इट विल बी रियली रियली ग्रेट। इट विल बी मेमोरेबल, वी विल बी क्रिएटिंग मोर मेमोरीज टुगेदर। एंड ये एक और इवेंट होगा जो हम सब, आई थिंक, आज से फिर से 2-3 साल बाद
इकट्ठा होंगे और फिर इस इवेंट के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे एक्सपीरियंसेस वहां पर कैसे रहे थे, किस बच्चे से हम मिले, कौन से सेंटर पे गए और हमने क्या सीखा. So, if possible, please join us. I think 5th October. Yes, 5th October is the event. So please come and let's create more memories together. Apart from this, मैं दो और चीजों के बारे में बताना चाहूंगी. तो राइट नाउ उपाय ने हमारे जो स्टार्टिंग के वॉलंटियर्स हैं, द फर्स्ट वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें वी वांट कि आप लोग काइंड ऑफ मिशन एम्बेसडर के नाम से है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई अपने आप को नॉमिनेट करे टू बी द एम्बेसडर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हर महीने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करें अबाउट उपाय, जिसमें हम डिफरेंट इश्यूज जैसे कि हम एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं या फिर चाइल्डहुड स्ट्रगल्स के ऊपर बात करते हैं, राइट टू चाइल्डहुड, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. सो आप लोग एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल से एवरी मंथ शेयर करें फॉर लाइक 12 months है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एन ईयर. एंड हर महीने आपकी पोस्ट के थ्रू हम और लोगों को रीच आउट करें एंड यूथ को अवेयरनेस दे अबाउट दिस कैंपेन एंड व्हाट उपाय इज डूइंग through its small initiative of helping the underprivileged section get education. So अगर आप में से कोई interested हो इसके लिए, please let us know because you are the propagators of change. आप लोगों ने ये change अपने अपने zones में start किया है and हम चाहते हैं कि आप इसको आगे भी बढ़ाएं और इसको उस लेवल पर लेकर आए जहां पे हम सब चाहते हैं कि उपाय एज एन ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे. This is one thing, and apart from this, I would also like to tell you that on the 19th of September, हम लोगों ने एक और कैंपेन है which is by the name of I am उपाय, इसको स्टार्ट कर रहे हैं. सो इसमें हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब एक एक पोस्ट करें एंड नेक्स्ट 5 लोगों को, जैसे राजू आपने एक पोस्ट किया एंड आप कुछ 5 लोगों को जिनको आप जानते हैं या उपाय से जुड़े हैं टू एज नॉमिनेट, like you can nominate them and they will then put a post from their social media handles and then they will tag 5 people and the chain continues. So these are the two campaigns which we are running at present. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एंड spread the word all around. So thank you so Sure. much. Thank you. And I think before we close, we have Praveen with us. Hi, Praveen. Hello, hi. Hi. Hello. Good evening. Sorry Good for evening. late join. No worries. कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया. Thank you. Thanks for asking. तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अबाउट प्रवीण. सो प्रवीण जो है वो नागपुर जोन से हमारे साथ जुड़े थे जब हमारा नागपुर जोन शुरू हुआ था. सो ये हमारे वन ऑफ द फर्स्ट वॉलंटियर्स हैं नागपुर जोन के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर ज्वाइनिंग एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया उपाय के साथ. यू हैव बीन एन इंस्ट्रूमेंटल पर्सन जिसने इस चेंज को इनिशिएट किया. सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस, या आपका कोई एक बेस्ट मेमोरी जो उस टाइम से या फिर जब आपने सेंटर स्टार्ट किया था, कुछ ऐसा मोमेंट या कुछ ऐसा मेमोरी आप हमारे साथ आज शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू. बहुत दिनों के बाद जुड़ा कनेक्ट हुआ सबसे, इसके लिए थैंक यू. हमारा बेस्ट मोमेंट मतलब हमें एक जो हमने जो फुटपाथ वाला सेंटर हमने यशवंत स्टेडियम में जो स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो उस सेंटर में फर्स्ट डे जब हम चालू करने गए थे तो हमें वहां के लोगों ने चप्पल गाली दे के हमको भगाया था वहां से पहले दिन. तो हम कंटिन्यूअसली ऐसा उनके साथ 1 2 3 महीने हमने कंटिन्यू उनके पास जाके 2 मिनट बात करके या कुछ चॉकलेट या कुछ देके ऐसा सब हमने कंटिन्यू 1 2 महीने हमने कंटिन्यू उनसे कनेक्ट रहने का और उनसे उन दोनों लोगों से बात करके और उनसे बच्चों के खेल कूद के हम वापस आते. तो हमने जो 2 2.5 महीने के बाद जो हमारा पहला सेंटर वहां पे हमने चालू किया था, तो हमारा पहला सेंटर वहां पे 5 मिनट का चालू हुआ था. जो हमारा 2 3 महीने के बाद जो हमने सेंटर स्टार्ट, फिर उसके बाद जो हमें देखा गया तो वहाँ के आसपास के लोगों, फ्रूट वाला भी हमारे अगेंस्ट था कि यहाँ पे मत पड़ाओ, हमारा फ्रूट का शॉप रहता है वहाँ.
पर कुछ दिनों के बाद हमने वहां पे ऐसा लगा कि हमें वो बच्चे हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट कर रहे, हमसे जुड़े थे और रेगुलर पढ़ने आ रहे थे। और जो फ्रूट वाला जो था हमारा, जो उसने हमारे अगेंस्ट था, वो 2-3 महीने के बाद खुद वो फ्रूट देना चालू कर दिया उन बच्चों को। तो हमारा वो परिवर्तन हुआ उसमें, जो हम जो अगेंस्ट के लेके फिर वो फेवर के सब लोग आगे, हमारे ऑटो वाले फिर हमें सपोर्ट करने लगे। और जो पारधी समाज करके जो कम्युनिटी है, जो धामन गांव के पास रहते, वहां पे रहते, संतरा मार्केट, सॉरी यशवंत स्टेडियम, जो नागपुर में एक फेमस प्लेस है, वहां पे वो रहते थे। तो वो अगेंस्ट से लेके हमारे साथ इतना अच्छे से बिहेवियर, हमें और हमें बहुत बाद में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे फेवर के वो रहते थे। तो इनिशियल स्टेज में जो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए, कि जो बहुत बहुत अगेंस्ट थे फिर बाद में हमारे फेवर के हो। तो नागपुर में अभी उपाय में जो हम जो पढ़ाते थे अभी, इनिशियल स्टेज में जो लोग थे कि हमें पढ़ने के लिए, वो भीख मांगने वाले बच्चे थे, उनका टाइमिंग था। और हमें वही यशवंत स्टेडियम का एक वाक्य है जो मुझे बहुत अभी याद आ रहा है। वहां पे दुर्गा माता मंदिर भी था। तो वो दुर्गा माता मंदिर के पास हमने फूल का उनको दुकान, मतलब नवरात्रि में उनको हमने दुकान लगा के दिया था, फूल माला बेचने का। तो उस ड्यूरेशन में तो वो उनको हमने फूल और सब माला खरीद के दी थी, तो वो बेचना था। तो हमने सुबह उनको दिया, शाम को उनके पास गए तो उनका दिन भर का हमने कितना बिजनेस हो हमने पूछने गए। तो उन्होंने बोला कि क्या सर, हमें क्या काम दे दिया? बोले दिन भर बैठे और 60 रुपए 60 रुपीज ही हमारा इनकम हुआ। ऐसे हम 1-2 घंटे में भीख मांग के ला लेते बस। तो ये हमें वहां पे ऐसा, उन लोगों की, मतलब लोगों जो भीख मांगने वाले बच्चे, उनको 400 to 500 डेली उनका इनकम है। तो उपाय जो बच्चों को, फुटपाथ के जो बच्चों को पढ़ाता है, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, जो चिल्ड्रंस को पढ़ाता है, तो उससे लोगों को भीख ना मांगने वाला, उसमें भी हम फोकस कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो एक वो सेंटर का थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस था वो, कि हमने स्क्रैच से लेके उसको अच्छे पोजीशन पे लेके आए थे उस सेंटर को। बच्चे नहाते नहीं थे, कपड़े ने जानबूझ के मिट्टी लगा लेते थे, ऐसा बहुत कुछ, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास जो इनिशियल स्टेज में हमने जो अनुभव है, पर अभी उतना टाइम नहीं बताने लेकिन। आई थिंक जो आपने इनिशियल जर्नी एक शेयर किया ना, मतलब उससे पता चलता है कि कितने स्ट्रगल्स रहे हैं, कितनी सारी चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है। मतलब बेगिंग उनके लिए कितना इजी ऑप्शन है, लेकिन उनके लिए उस ऑप्शन को छोड़कर पढ़ाई को चूज करना एंड देन पढ़ने के लिए आना, ये अपने में ही एक इतना बड़ा चैलेंज लगता है कि उनको उस चीज के लिए मनाना कितनी बड़ी बात है। अगर वो बेगिंग से ही 400-500 रुपए कमा ले रहे हैं तो वो क्यों पढ़ना चाहेंगे? बट फिर भी उन चैलेंजेस को ओवरकम करके उपाय ने वहां पर एक प्रेजेंस बनाया, उन बच्चों को पढ़ाया एंड उनकी लाइफ में एक चेंज लाया। आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट कि कितना कमेंडेबल वर्क हुआ वहां पे, जिसकी वजह से उन बच्चों की लाइफ में चेंज आया। सो आई थिंक आई अप्रिशिएट इतने एफर्ट्स जो आपने किए, जो इतना मेहनत किया और उस एरिया में एक चेंज लाया विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और आज वहां के बच्चे शायद एक लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे बेगिंग उनके लिए अब ऑप्शन नहीं है। दे डू नॉट वांट टू गो बैक टू दैट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। और वे वॉलेंटियर जो उनका जो पेशेंस, जो सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारे जो उपाय के जो वॉलेंटियर्स है उनको जाता है। वो पेशेंसली, वो जो 2-3 महीने या कंटिन्यूसली, इनिशियल स्टेज में सभी वॉलेंटियर को पेशेंस। और हमें ये भी पता है कि 10 साल काम करने के बाद हमें ये लोग कभी ना कभी गाली देंगे, तो हम उसके लिए भी रेडी रहते। तो उपाय ने वो जो वॉलेंटियर को जो सिखाया, जो पेशेंस जो बोलते, वो बहुत काम आएगा सभी लोगों के, हम सबके भी काम आ रहा है और आएंगे अभी इन फ्यूचर। पेशेंस बहुत जरूरी था, उपाय ने वो सिखाया, और वो हमें हर बार काम आया, जो उस चीज का। एब्सोल्युटली। जो आपने बात बोली ना पेशेंस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो शायद हम उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को और उन चैलेंजेस के लिए रेडी ही नहीं हो पाएंगे और कभी उनको ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे। और जो हम चेंज लाना चाहते हैं शायद उसके लिए भी हम लोग उस लेवल तक शायद नहीं जा पाए, अगर हम पेशेंस के साथ उस एरिया में जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोगों को समझ पाए, तभी हम लोग उस चेंज की तरफ जा सकते हैं, आई बिलीव। सो थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर शेयरिंग दिस। एंड सिंस आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं टू टॉक अबाउट द 15 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ
उपाय। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि अगर आपको एक मैसेज देना हो टू ऑल द वॉलंटियर्स एंड टू ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद उपाय ऑन दिस ओकेजन, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मेरा यही कहना रहेगा, जो उपाय ने मुझे सिखाया वो सबको सिखाने के लिए, मतलब मैं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ कि अगर हमें सोशल वर्क करना है तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विद द पेशेंस, हमें वो कंटिन्यूअसली सोशल इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, विदाउट जीरो एक्सपेक्टेशन से हमें बच्चों की तरफ से भी और एज वेल एज हमारे वॉलेंटियर्स या हमारे सोसाइटी की तरफ से। जिस दिन आप विदाउट जीरो एक्सपेक्टेशन से काम करोगे तो आप कंटिन्यूएशन में वो काम करोगे, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जीरो एक्सपेक्टेशन से आप काम करें। Thank you so much, Praveen, for that beautiful message. And with this, I would also like to invite you to नागपुर। आप नागपुर में ही रहते हैं ना आप तो? जी जी जी। तो यस 5 यस। अक्टूबर को आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें फॉर द सेलिब्रेशंस, 15 ईयर सेलिब्रेशंस जो हमारा नागपुर मौधा में होने वाला है 5 अक्टूबर को। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी आए, हमारे साथ जुड़े और उस दिन को एक मेमोरेबल इवेंट बनाए। So please do try to come. श्योर। And thank you so much for your time. With this, we have come to the closure of the podcast. Thank you, Siddiq. Thank you, Praveen ji, for joining. Over to you, Snehal. Anything from your side? Hi, Akanksha. How are हाय you? मिथिला, बढ़िया। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। So, today, since उपाय को 15 years हो गए हैं, so हम राइट। लोग connect कर रहे हैं with all the first volunteers of the zone to know about their experiences and their memory. So, since गुड़गांव zone आपने शुरू किया था, and उस टाइम पे I think it was started in 2015 if I'm not wrong. तो राइट। जब आपने स्टार्ट किया था और जैसे आपने टाइम स्पेंड किया या जो आपकी जर्नी रही, हैज देयर बीन एनी वन मोमेंट और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे विद अस ऑन दिस ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 15 years? यस। पहले तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मतलब मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उपाय से जुड़ी। और लाइक कुछ जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई उपाय के थ्रू। तो मेरे लिए उपाय तो हमेशा ही एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्लोज। मैं अभी अभी भी जब भी किसी को बताती हूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या कब कब क्या है, वर्क एक्सपीरियंस है कुछ भी, तो उपाय के बारे में जब बताती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मतलब लाइक बहुत ही पैशनेटली बताती हूँ। तो वो दिखता है। तो वो इसीलिए वो टाइम जब मैं थी उपाय में, वो बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम से समझ सकते हो कि मेरी जो एनर्जी लेवल और सब कुछ सारा अलाइंड, वो सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट रहा था। और क्या चीज लोग बोलते हैं कि आप जब सोशल सर्विस करते हो तो दूसरों के लिए करते हो, है ना। वरुण से भी मैंने कई बार सुना है कि आप, ये ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए करता हूँ, ये मैं मुझे खुशी होती है उसको करने में तब मैं इसलिए करता हूँ। ये चीज मैंने अभी रियलाइज किया है कुछ टाइम पहले कि एक्चुअली में जब हम ये करते हैं ना, मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं या फिर वो करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें खुद अच्छा लगता है, इसलिए मतलब और वो मोटिवेशन मिलता है। तो उपाय के थ्रू मुझे ये एक्सपीरियंस फील करने का और ये करने का मौका मिला। वहाँ पे हमें हर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हाई हाई ही रहता था। थोड़े बहुत जो चैलेंजेस भी आते थे तो वो भी अंदर से इतनी इतना क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन रहता था अंदर से, ऐसा लगता था कि कोई पावर है जो हमें ड्राइव कर रही है। और जो टीम होती थे स्पेशली, सबसे इम्पोर्टेंट तो टीम जो हमारे उपाय में थे, क्या हुआ है सब कोई ऐसी जगह से आए हैं, सब लोगों ने लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस देखे हैं और सब लोग अपने खुद की क्या बोलते हैं उसको प्रायोरिटीज को पीछे करके और एक बिगर काउज के लिए जुड़े जुड़े थे। तो वो क्या होता था ना कि जैसे कोई चैलेंज भी है ना तो हम लोग उसको इतने आसानी से उसको नेविगेट कर लेते थे ना कि लगता ही नहीं था कि ये चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैं शुरू का टाइम बताती हूँ, जब बच्चों से के पास हम गए थे
मुझे याद है गुड़गांव के फर्स्ट सेंटर पे सेक्टर 57 में। तो वो एक ऐसा था कि रोड के जस्ट थोड़ा ही पास में इनका चुग्गी होता था, और हम लोग वहाँ पे इकट्ठा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अब क्योंकि हम लोग का भी पहला एक्सपीरियंस था बच्चों को इस तरह से पढ़ाने का, हमने सोचा था हम जाएंगे पढ़ाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, बच्चे आराम से बैठेंगे और मस्त पढ़ेंगे। लेकिन फिर जो चैलेंजिंग पार्ट ये था कि साइड मतलब बिल्कुल रोड के किनारे हमें एक जगह मिली थी। अब बच्चों का अटेंशन ग्रैब करना, उनको फोकस करके रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर हम जैसे ही एक दो दो तीन वॉलंटियर्स मिले, तो हमने अपने अपने वो किए कि मतलब कैसे कर सकते हैं उनको एंगेज, कैसे कर सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते थे शुरू में, तो शुरू के 6 महीने 1 साल तो हम एक्सपेर खुद से कर करके सीखे बहुत सारी चीज। हमारे पास गाइडेंस भी था वरुण का, जो पुराने हमारे सेंटर्स है उनका मतलब जोन्स है, उनका गाइडेंस भी था। एट द सेम टाइम हम खुद भी कर करके सीखते थे। तो जो चीज एक चीज जो हमें मुझे याद है जो बहुत अच्छे से वर्क करती थी, वो ये था कि उनको ऐसे सर्कल में बिठा देते थे, चाहे वो कितना भी मतलब क्योस मचा रहे हैं बच्चे, कुछ भी कर रहे हैं। वो मैंने वरुण को भी देखा था कि ऐसे सर्कल में बिठा देते थे सबका हाथ पकड़ के। फिर बच्चे बड़े खुशी से, उनको लगता था कुछ तो हो रहा है, सब लोग ऐसे सर्कल में बैठ जाते थे। और फिर उसके बाद ऐसे बैठ जाएंगे थोड़ी देर, फिर आराम से सुनेंगे, जैसे बीच में खड़े होकर कोई बता रहा है। या फिर एक हमने और एक और चीज स्टार्ट किया था कि उनको स्टार्टिंग में मेडिटेट कराते थे, जैसे आंख बंद करके और मेडिटेट कराते थे। और तो उस टाइम में भी मुझे याद है सब कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छे से शांति से ये करेंगे, फिर आंख खोल के इधर उधर देखेंगे। और फिर ऑब्वियसली छोटे हैं ना, बहुत छोटे छोटे थे, और उनको कभी एक्सपीरियंस भी नहीं इतने देर बैठना, क्यों बैठना, बगल में उनके घर है, झुग्गी है, इधर बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे कोई खेल रहे हैं, क्यों ऐसे बैठना है। तो वो चीज जो था ना, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, हमारे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस था, चैलेंजिंग था। और हमने धीरे धीरे ओवरकम भी किया। स्लोली स्लोली हमने वो कुछ कुछ वो इंट्रोड्यूस कराया, टीचर्स हायर किए, जो टीचर्स जो कि क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि बच्चों को कैसे है। क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली वॉलंटियर्स थे, जो और भी जो जिनके अंदर मतलब वो तो था क्या बोलते हैं उसको, इंटेंट तो था, बट एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे करना है। बट वो बोलते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी तरह वहां पहुंच ही जाते हो। तो दिस एक्सपीरियंस हैज शोड अस ऑल ऑफ अस कि हम कैसे कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वहां पहुंच जा रहे हैं। इट्स लाइक लेकिन हमें बस इंटेंट होना चाहिए, और आप वहां। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं जब भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हो पाएंगे, मैं जब भी किसी मुश्किल टाइम में रहती हूँ और मैं उसको याद करती हूँ, तो लगता है कि हाँ यार मतलब किस तरह से हमने इतना कुछ किया, और लगा ही नहीं कभी कि हमने इतना कुछ किया, और सब कुछ हो भी गया काफी कुछ। अभी बहुत अच्छे से सेंटर्स चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने स्पर्धा का वो देखा था, बच्चों का आर्ट कंपटीशन। तो इतने अच्छे से बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, ला रहे मतलब बनाए, उन्होंने प्रेजेंट किया, उसको रिलेट किया, जो उनकी लर्निंग है उसको रियल लाइफ से रिलेट किया। ऑब्वियसली जो हम चाहते हैं कि वो बच्चे ऐसे करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और स्पेशली उपाय इतना वो हो रहा है, क्या बोलते हैं 15 इयर्स हो गए तो। यस, बहुत सारे मेमोरीज है, बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स है, बट या दीज आर फ्यू ऑफ देम। अभी बात करते करते बहुत सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग खेल यात्रा में कहीं गए, फिर दिल्ली का सेंटर जब शुरू करा था, फिर वहां पे कैसे बच्चे आते थे, फिर सोना रोटा सेंटर स्टार्ट किया था। बहुत सारे मेमोरीज हैं, एंड इट्स ऑलवेज हैप्पी टू थिंक अबाउट एनी मेमोरी एंड जर्नी रिलेटेड टू पाए। करेक्ट। आई थिंक जो आपने चीजें शेयर करी, जैसे छोटी छोटी चीजें जो होती है, आई थिंक राइट, में बिठाना और इन राइट, करना, कुछ छोटी मोटी चीजें जो इंटेंट है वो एक्चुअली मैटर करता है। मतलब ठीक है, राइट, स्किल राइट, इज वन थिंग, बट इंटेंट राइट, फर्स्ट, मतलब इट कम्स फर्स्ट एंड देन द राइट, स्किल्स ऑटोमेटिकली आ ही जाती है अगर आपको करनी है वो चीज। यस, सो दिस राइट, ऑल राइट, मेक्स अ करेक्ट, लॉट ऑफ डिफरेंस। So thank you so much, यस। Akanksha, for sharing this. And my next question to you is there any message that you would like to give to all the volunteers, all the people who are associated with Dubai today on this special occasion? Any one message that you would यस, like to give to everybody? यस, आई वुड लाइक टू। सो उपाय में जैसे जैसे हम बड़े बड़े धीरे धीरे वॉलंटियर्स और जुड़े, टीम बढ़ी, तो एक चीज जो मैंने नोटिस किया, और आई थिंक वो नेचुरली भी आया, और हमने देखा जो चीज हेल्प कर रहा था हमें, दैट वाज बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कभी भी किसी भी टीम कहीं पे भी हम हैं, हम दूसरे की बात सुन रहे हैं और उसको कैसे रिस्पेक्टफुली ये उसको सुनना, और उसको मतलब लाइक उनकी बात को समझना, भले ही वो किसी भी लाइक कोई भी एज, कोई बड़ा है छोटा है, ये चीज बहुत मैटर करती थी। तो दिस इज समथिंग विच आई वांट लाइक टू
टिल द वॉलंटियर्स, आप अपने से छोटे या बड़े कोई भी हो, सबके लिए इक्वली यू शुड हैव दैट रेस्पेक्ट कि हाँ कोई भी है वो अपने साथ कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आया है जो हमें लाइक ऐड कर रहा है, तो दैट इज वन थिंग दे शुड बी दे शुड हैव इन माइंड दैट इट हेल्प्स. I think that's a very meaningful message for every person who's associated, and I राइट. think should remain with all of us whenever we are यस. doing this work. And उससे बहुत राइट. ज्यादा एक impact create होता है, because बाकी सब चीजें ठीक है but values play a very राइट. important role. So yes, राइट. all right. Thank you so much, Akanksha, for sharing your experience, and it was यस, wonderful थैंक यू talking सो to मच. you. Thank यस, you. ऑलवेज प्लेजर. थैंक यू.